स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੇਨ ਹੈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਕ ਹੈ 220 ਵੋਲਟ। ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਸਾਡੀ 220 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਐਮਐਸ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਐਮਐਸ ਵੋਲਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 220। ਠੀਕ ਹੈ, और फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है एसी ਦੀ 50 हर्ट्ज आ रही है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ, ਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, E is equal to ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ E naught sin ओमेगा t। ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, E naught ਤੇ ओमेगा ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ E naught ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ √2 ਟਾਈਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਦੇ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ √2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 220, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 311 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨੇ ਵੋਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਨਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਨਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇੰਟੂ 50, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 100 ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲਿਊਸ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, E ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 311 sin 100 ਪਾਈ into t। this is the value, instantaneous value of EMF। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 50 ਓਹਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ 50 ਓਹਮ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 10 ਵੋਲਟ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 50 ਓਹਮ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਸੀ ਦੀ 100 ਓਹਮ ਹੋਏ, 100 ਹਰਟਜ਼ ਹੋਏ, ਤੇ ਆਰਐਮਐਸ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ। ਆਰਐਮਐਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ peak value of current upon √2. Current means voltage upon resistance √2. E naught is equal to 10, 50 and √2. ठीक है, after solving it we get IRMS is equal to it is 141.4 ampere। Next, write the equation of instantaneous value of current। current ਦੀ instantaneous value ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ I is equal to I naught sin omega t। ठीक है, I naught ਸਾਨੂੰ given ਹੀ ਹੈ, सॉरी I naught ਤੇ कैलकुलेट ਕੀਤਾ नहीं, चलो 1 I naught ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ E naught upon R ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ, sin omega ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 pi nu into t। E naught ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 upon R is equal to 50 sin 2 pi nu ਦੀ value 100 hertz and t, and it becomes equal to 0.5 sin 200 pi into t। clear, this is the instantaneous value of alternating current, sorry 0.2 होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਰਐਮਐਸ ਵੈਲਿਊ ਕਰੰਟ ਦੀ ਫਿਗਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਫਿਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, और करंट की वैल्यू भी गिवन है, ऊपर 2 एम्पीयर है, नीचे -2 एम्पीयर है, इतने 0 है। ठीक है,
ਹੁਣ देखो करंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਪਾर्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। पहले पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ करंट 2 एम्पीयर है, मैं ਇਹਨੂੰ I1 ਲਿਖਾਂਗਾ। दूसरे पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ करंट -2 एम्पीयर है। तीसरे पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ करंट फिर +2 एम्पीयर है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर का मतलब की होंदा है? रूट स्क्वायर्स दा मीन स्क्वायर्स करते करंट से इन्हां दा मीन है। 3 है ना करंट, 3 नाल डिवाइड करता, वैल्यू पुट करांगे 2 दा स्क्वायर फिर -2 दा स्क्वायर +2 दा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ये सॉल्व करके साडे कोल आ जाएगा 2 एम्पीयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इंस्टैंटेनियस वैल्यू सानू दित्ती है AC दी, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ RMS वैल्यू ਕੱਢਣੀ है। ठीक है, ਹੁਣ इंस्टैंटेनियस वैल्यू ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ I = I0 sin ω t। ठीक है, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ I0 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 5 ਦੇ। RMS वैल्यू किहदे बराबर होंदी है? RMS वैल्यू होंदी है I0 डिवाइडेड बाय √2। ये साडे कोल आ गया 5 डिवाइडेड बाय √2 ते इनू सॉल्व करके साडे कोल आंसर आंदा है 3.54 एम्पीयर। क्लियर? नेक्स्ट साडे को क्वेश्चन नंबर 5। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या है कि साडे कोल 100 हर्ट्स AC सोर्स ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ AC ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 14 ਮਿਲੀ ਹੈਨਰੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ 14 × 10⁻³ ਹੈਨਰੀ। ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਕੱਢੋ, मतलब XL ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਔਰ XL ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? L ਓਮੇਗਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ L × 2πν। ओमेगा की वैल्यू भरती या L की जगह से 14 × 10⁻³ लिख दो। 2 × 3.14 इंटू फ्रीकुएंसी 100 तो ये सॉल्व करके साढ़े को आंसर आ जाएगा 8.8। हम देखो रिएक्टेंस के यूनिट होंगे ओहम क्योंकि ये ओपोजिशन ऑफर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये साढ़े को एक इंडक्टर दिता है जिहदी इंडक्टेंस 25 मिली हैनरी है या असीं इहनूं 25 × 10⁻³ हैनरी लिख लैंदे हैं। उन्होंने आपां कनैक्ट किया एक AC सोर्स के नाल जिहदी RMS वैल्यू देखो जो भी गिवन है ना तुहानूं दिता AC सोर्स की रेटिंग जिहड़ी है वो RMS वैल्यू ही होंदी है। इंडक्टिव रिएक्टेंस कढनी है XL = L ओमेगा = L × 2πν L की वैल्यू साढ़े को 25 × 10⁻³ एंड 2 × 3.14 इंटू फ्रीकुएंसी दी है 50 हर्ट्ज। ये सॉल्व करके साढ़े को आंसर आता है 7.85 ओहम। याद रखना दी यूनिट ओहम होंगे। इस तो बाद सानू पूछ रहा है RMS करंट कड्डो तो RMS करंट की वैल्यू कितनी आएगी? द करंट इंडक्टर दे विच कितना होंदा ERMS वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, ओहम्स लॉ ही सीधा लगा देता है। ERMS 220 और XL अहीं कढ़िया 7.85 = ये सारा सॉल्व करके आंदा है 28.03 ओम। कैलकुलेशन तुसीं करके एक बारी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है एक कोयल है जिहदी इंडक्टेंस सानू 1 हैनरी दी है। पूछ रहा पहले क्वेश्चन दे विच कि कितनी फ्रीकुएंसी ते उहदी रिएक्टेंस जिहड़ी है मतलब XL वो 3142 ओम हो जाएगी। फ्रीकुएंसी कढ़नी है
ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ XL ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ L × 2 ਪਾਈ ਨਿਊ। ठीक है, इथों न्यू कि इक्वल आ जाएगा XL अपॉन 2 पाई × L। ये सारिया वैल्यू पुट कर देने 3142 अपॉन 2 × 3.14 × L की वैल्यू साढ़े को 1 देती है। ठीक है, इनू सॉल्व करके साढ़े को 500 हर्ट्ज आ जाएगा आंसर। क्लियर। और दूसरे क्वेश्चन च पूछ रहा है कि कितनी फ्रीक्वेंसी ते कैपेसिटी जी है कैपेसिटर की वो सेम रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगी। मतलब सैकेंड क्वेश्चन च कह रहा है रिएक्टेंस दोनों दियां बराबर कितनी फ्रीक्वेंसी ते हो जानी है। ठीक है, इनू सॉल्व करते हैं। देखो सेम रिएक्टेंस एट दैट फ्रीक्वेंसी कि कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए कैपेसिटर की। इसका मतलब जी XL XC के बराबर है तो XC का मतलब होंदा इत्थे XC की वैल्यू पुट कर देंगे पहले। XC का मतलब होंदा 1 डिवाइडेड बाय C × 2 पाई न्यू। ठीक है, ये दी वैल्यू होंदी है तो फ्रीक्वेंसी असी कट चुके हैं और XL की वैल्यू सानू गिवन है 3142। C कैलकुलेट करांगे, C नू उधर लै जाओ, बाकी सारा कुछ इधर लै आओ। 3142 × 2 पाई न्यू = C। ठीक है, मतलब C किते इक्वल आ गया तुहाडे कोल इत्थे C बिकम्स इक्वल टू सारिया वैल्यूज जो तुसीं पुट करते हो 3142 × 2 × 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी असी कैलकुलेट की है 500 हर्ट्स। ये सारा सॉल्व करके 0.11 10⁻⁻6 फैरड आ जानी है। माइक्रो फैरड च कन्वर्ट कर लो 0.11 माइक्रो फैरड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि साढ़े कोल एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 1.5 माइक्रो फैरड है और इनू कन्वर्ट कर लेंगे 1.5 10⁻⁻6 फैरड। उन्होंने आपां AC सोर्स नाल कनैक्ट करता, RMS वैल्यू गिवन है तुहानू 220 वोल्ट ते फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्स। क्लियर। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। RMS भी कढ़ना है, पीक भी कढ़ना है। सब तो पहले तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कढ़ दे 1/C × 2 पाई न्यू। ये फार्मूला आप अप्लाई करता 1/C की जगह पे 1.5 10⁻⁻6 फैरड मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी दी है सानू 50 हर्ट्स। ये सारा सॉल्व करके साढ़े को आना 212 ओम। उस तो बाद RMS वैल्यू ऑफ करंट कढ़ते हैं। RMS वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू ERMS वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस XC है दे केस च ते 220 अपॉन XC की वैल्यू 212। ये सॉल्व करके आना 1.04 एम्पियर। नेक्स्ट की पूछ रहा है पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट बिकम्स इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ IRMS। ये याद रखना है। वैल्यू फिर तो पुट करांगे 1.414 × 1.04 it becomes equal to 1.47 ampere. This is the peak value of current. Next question number 9 कि एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरड का, उन्होंने आप AC सोर्स ना कनैक्ट करता और AC सोर्स की EMF है 250 sin
100 ਪਾਈ ਇੰਟੂ ਟੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਈ ਨੋਟ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ 100 ਪਾਈ, ਤੇ ਈ ਨੋਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 250 ਵੋਲਟ। ठीक है, ये सारिया चीज़ां सानू गिवन है। वो कहता इक्वेशन बनानी है तुसी इंस्टंटेनियस करंट दी, जेड़ा ते नाल ही दसनी है रीडिंग ACM मीटर दी कितनी है। मतलब तुसी इंस्टंटेनियस करंट दी एक इक्वेशन बनानी है, I इज इक्वल टू कैपेसिटिव सर्किट दे विच इक्वेशन इस तरह होंदी है, साइन जे तुसी चेक करना कर भी सकते हो प्लस पाई बाय 2, क्योंकि ये करंट अगे रहिंदा है, ठीक ये बराबर। और इत्थे जिहड़ा करंट आई नॉट है, आई नॉट हुंदा है ओमेगा सी इंटू ई नॉट। ये भी तुसी चेक कर लेना है आर्टिकल जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट वाला आर्टिकल जो असीं कीता सी, उहदे विच आपां इस तरह लिखिया सी। हुण ये सारियां वैल्यूज इहदे विच आपां पुट कर दिंदे आ, ते आई साडे कोल किहदे इक्वल आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू सानू 100 पाई दी है, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू सानू 250 दी है, तो सी की वैल्यू 10⁻⁻6 दी है, और साइन फिर तो इत्थे 100 पाई इंटू टी प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। इत्थे सारा सॉल्व करके साढ़े कोल जी मेन वैल्यू आती है वो आनी है 0.0786 साइन, बाकी अंदर इदा ही रहन देना 100 पाई इंटू टी प्लस पाई बाय 2। हुण एमीटर कितनी रीडिंग देंदा है, उन्होंने आप RMS वैल्यू बोलते हैं। RMS वैल्यू होंदी है आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। आई नॉट साडा इहदे च कितना है, आई नॉट है 0.0786 अपॉन √2। ये सारा सॉल्व करके साडे कोल आंदा है 0.06 एम्पीयर। क्लियर। नंबर 10, रेजिस्टेंस 50 ओम है सानू गिवन, इंडक्टेंस इंडक्टर दी गिवन है 20/2 पाई एच, ते कैपेसिटेंस गिवन है C = 5/पाई माइक्रोफैरड। इन्होंने तीनों सीरीज च कनैक्ट करता AC सोर्स के नाल, जिहदी RMS वैल्यू 230 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इंपीडेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सब तो पहले असी XL कैलकुलेट करांगे। XL मतलब L इंटू 2 पाई न्यू। साढ़े को L देता है 20/पाई इंटू 2 पाई, न्यू की वैल्यू देती है 50, पाई ना पाई कैंसल, तो ये साढ़े को आंसर आ गया 2000 ओम, ठीक। इस तो बाद XC कैलकुलेट करते हैं, वो होंगे 1/C इंटू 2 पाई न्यू। फिर इत्थे 1/C की जगह से 5/पाई माइक्रो 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू पाई, पाई नूं पाई रहन दिंदे हैं, इंटू न्यू 50, पाई ना पाई कैंसल, सॉल्व करके साढ़े कोल C की वैल्यू भी आनी है 2000 ओम। इंपीडेंस किहदे इक्वल होंदी है, इंपीडेंस का मतलब होंदा है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जो R की वैल्यू पुट करो 50 दा स्क्वायर, ये दोनों की वैल्यू 2000 माइनस 2000 दा स्क्वायर, 0 की वैल्यू, तो 50 का स्क्वायर तो 2500 तो 50 आ जाएगा।
50 ओहम इंपीडेंस होएगी सर्किट ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਆ। LCR ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਟ ਦੇ ਥੋੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਔਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।